Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. My dear students, this is last class जिसमें हम लोग 181 से 200 तक के क्वेश्चन करेंगे और ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. So मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं. Which of the following is not an objective of physical education? There are some particular objectives given by the physical education subject as a subject or various authors. So very first of them is cognitive domain, affective or psychomotor domain. Out of them, if you will see, there is a interpersonal domain that is not come under the category of objectives of physical education. So we will go with that interpersonal domain. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 182. Physical education is the sum of all those experiences which comes to the individuals through movement was defined. So this definition was given by Delvert over Triffer, right? So this will be the correct answer. Question 183. The cohesive group are necessary part of human culture, modern civilization, social existence, and sports system. So cohesive group are greatly responsible for the good performance of sport system. Is an example of secondary group. So I have also taken a class for the primary group and the secondary group as well. So इसमें क्या होगा, जो NCC यूनिट है वो सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट होगा. रेस्ट ऑफ फैमिली, पीयर ग्रुप और द ग्रुप एट रेलवे स्टेशन, ऑल दिस काइंड ऑफ द ग्रुप दे आर primary group because the people are directly involved in all these groups. Now the question number 185. Sociometric procedures measurement for the attitude of the social acceptance, rejection among the members of the social grouping validity in an athletic group is done through measurement skills, expressive preferences, social skills and social interactions. So जो भी इस टाइप के ग्रुप्स हैं जिसमें रिजेक्शंस की बात करी जाए, सोशल एक्सेप्टेंस की बात करी जाए, मेरे प्यारे बच्चों वो सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो किस में आते हैं, हमारे एक्सप्रेसिव प्रेफरेंसेस के रूप में हम उनको देखते हैं और वहां से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. So now we will deal with the question number 108. The sports and physical education is the part of educational system and are key contributor to. So we'll talk about the education system, social development, human development and intellectual development. All kind of the developments are there with the help of physical education we can done with. Now the next question 187. The research demonstrate that the sport persons benefit from the presence of audience and other athletes supports to the concept of social facilitation. We have already discussed about that if the number of crowd is higher, the athlete get the motivation from the crowd. That is the concept of social facilitation. The next question is the study of the force exerted by the individuals on the group or group of an individual. तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी किसमें आती हैं, कोहेशन के अंदर में आती हैं. ठीक है, जहां ग्रुप्स की बात करी जाए, जहां ग्रुप में क्या करते हैं, एक दूसरे को लोग अफेक्ट करते हैं. अगर उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोहेशन अच्छा है, तो जो परफॉर्मेंस होती है पर्टिकुलर ग्रुप की, मेरे प्यारे बच्चों, वो एंटायर परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतर होती है इन कंपैरिजन ऑफ लेस कोहेशन. क्वेश्चन नंबर 189. इफ द कैप्टन ऑफ द टीम इज अ permissive टाइप लीडर, द टीम विल. अगर लीडर आपका इस टाइप का है कि वो चाहता है कि जो वो कहता है वही सारे प्लेयर्स करें, तो हार्डली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. बीइंग ए लीडर यू हैव टू लिसन द प्रॉब्लम ऑफ योर ग्रुप, प्रॉब्लम ऑफ योर टीम एंड द सजेशन फ्रॉम देयर. मे बी some player come to you with a good plan, so you have to be open ears to listen the suggestions from your teammates. What will be the right answer? Hardly produce the results.
Okay. The next question number 190. What kind of group are generally cohesive? जो किस टाइप के ग्रुप में जो कोहेसिवनेस होती है वो ज्यादा होती है? तो ये जाहिर सी बात है कि ग्रुप जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ही ज्यादा उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा होगी, इंटर रिलेशंस अच्छे होंगे, राइट? So group dynamics is a relatively a new concept in the field of socio psychology. इसमें कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं, स्पोर्ट्स इसमें आंसर लगा देते हैं, बस इसमें राइट आंसर जो है वो सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अगर आप बात करें फिजिकल एजुकेशन की तो वी आर ऑप्टिंग सो मेनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द डाइवर्स फील्ड बिकॉज फिजिकल एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, because we are inculcating so many concepts like concept of physics in the field of biomechanics, so and the mathematical operations, statistical operation in the field of research, right? तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द स्पोर्ट्स हैज बीन एबल टू ब्रिज कल्चर व्हेन कंपेयर आर्ट एंड म्यूजिक बिकॉज द स्पोर्ट्स इज। अब बात ये समझिए यहाँ पे आप, क्या है इसमें बात करी गई है आर्ट की और म्यूजिक की। अब आर्ट और म्यूजिक बहुत ज्यादा अगर आप बात करो तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग जिम्नास्टिक में यूज करते हैं, राइट? उसके अलावा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्टिविटीज में यूज नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर द प्लेयर ऑफ रेसलिंग देन नो नीड ऑफ म्यूजिक, इफ यू आर द प्लेयर ऑफ आर्चरी नो नीड ऑफ म्यूजिक। सो न तो ये ट्रेडिशनल होगा ना ही ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्टिविटी होगी, ये क्या है, एक रूल बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है? तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 193, which of the following is not the psychological benefits of exercise? अब इस बात को आप समझने की कोशिश करें, यहाँ जितने भी जो आपको आंसर्स दिए हैं वो सारे के सारे क्लोज हैं काफी। इट इंक्रीज द वेनस रिटर्न, जो आपकी वेन्स हैं उनमें ब्लड के रिटर्न्स को इंक्रीज करता है। दूसरा, डिक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट, डिक्रीज एरोबिक थ्रेशोल्ड एंड इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बात यहाँ हो रही है साइकोलॉजी की, तो कई एक बार ऐसा होता है कि आप साइकोलॉजिकली कुछ इस तरह से सोचते हैं कि जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो वीनस रिटर्न भी बढ़ेगा, राइट? रेस्टिंग हार्ट रेट आपकी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, अगर कार्डिक आउटपुट आपका बढ़ा हुआ है किसी सोच की वजह से, राइट? अगर इसमें नेक्स्ट अगर देखो तो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। कई एक बार आप देखो कि बैठे बैठे आपको पसीना आ जाता है, कई एक बार बहुत चीजें सोचने से ही, राइट? अगर आप एरोबिक थ्रेशोल्ड की बात करोगे तो आप साइकोलॉजिकली एरोबिक थ्रेशोल्ड के साथ कोई भी डीलिंग नहीं कर सकते हैं। आप बैठे बैठे कुछ भी सोचिए मत सोचिए, लेकिन एरोबिक थ्रेशोल्ड क्या होता है बेसिकली आपकी, कि कोई भी एक्टिविटी जब आप कर रहे हो, राइट, और वो एक्टिविटी जहां आपको ऑक्सीजन का कंजप्शन बिल्कुल एक तरह से लो सा हो जाए, एज मार्जिन पर पहुंच जाए, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक थ्रेशोल्ड, ठीक है? या फिर यूं कहूं कि जहां एनारोबिक एक्टिविटी की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाए और ये एरोबिक में चेंज हो रही हो, उस पर्टिकुलर डाइवर्जन पॉइंट को बोलेंगे हम लोग एरोबिक थ्रेशोल्ड। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दैट क्वेश्चन। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल फिजियोलॉजी और स्पोर्ट फिजियोलॉजी। जल्दी से फटाफट आंसर करें आप इसका। इस क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। एग्जैक्टली, तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है ये, है ना? और ट्राई करिए जल्दी से। वेरी नाइस। सो आंसर विल बी द ह्यूमन फिजियोलॉजी। काफी ज्यादातर बच्चों का ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आंसर है। आप इसमें स्पोर्ट फिजियोलॉजी को मत लेके आइए, क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जो है वो एक्चुअल में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है। स्पोर्ट फिजियोलॉजी अपने आप में एक ब्रांच है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 195 इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ मसल्स। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस माना जाता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द ब्लड सप्लाई इन द मसल्स, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। ब्लड सप्लाई आपकी मसल्स में क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में,
और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए ही ब्लड की जो वॉल्यूम है पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड ही कैरी करता है आपकी ऑक्सीजन को। सर ब्लड में ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल, ये हीमोग्लोबिन का काम है, क्योंकि अगर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट्स की बात करें तो अच्छा, इसमें एक चीज और सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट ब्लड में होता है उसी का ही एक काउंटर पार्ट होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट्स किसमें, आपका मसल्स में, जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट मसल्स में क्या होता है, तो वो आपका मायोग्लोबिन है। अगर आपका ब्लड में पूछता है तो वो आपका हीमोग्लोबिन है। दोनों का एक ही काम है, दोनों ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, a kind of contraction maintains to the various joints in certain positions against to the force of gravity। वो किस तरह का कंट्रक्शन होगा जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट हम अपनी मसल्स को मेंटेन कर पाते हैं सिमेट्री के लिए, राइट, कि जो मसल्स की फॉर्मेशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और हम लोग बड़ा आसानी से ये जानते हैं कि मसल्स की जो जो मैट्रिक्स है उसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रही है तो वो एक्सरसाइज कौन सी होती है, हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 198। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं और हम लोग 200 पे इस पूरे पेपर को खत्म करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्लो ट्विच फाइबर। यहाँ स्लो ट्विच फाइबर की बात हो रही है, और स्लो ट्विच फाइबर को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, जल्दी से हम कमेंट करके बताएंगे कि जो स्लो ट्विच फाइबर है उसको किस दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग। तब तक हम लोग नेक्स्ट जो इसके आंसर्स हैं उनको देखते हैं। रिलेटिवली लो मायोसिन एटीपी एक्टिविटी, बिल्कुल बात सही है ये। स्लो कैल्शियम हैंडलिंग एबिलिटी एंड शॉर्टनिंग स्पीड, ये भी बात सही है कि जो स्लो टिच फाइबर होते हैं उनमें शॉर्टनिंग जो स्पीड होती है या मसल कंट्रक्शन एबिलिटी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू फास्ट ट्विच फाइबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोथ जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे सही हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, इसको स्लो ट्विच फाइबर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, वाइट मसल फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199। ठीक है, इसमें मैच करना है आपको। अब सिंपली आप देखिए, यहाँ पहला है ऑप्शन जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट आंसर आपको देता है, एक्सटेंड एंड रोटेट द थाई। अगर हमें थाई को एक्सटेंड करना है और रोटेट करना है तो इसमें से कौन सी मसल है वो जो यूज होगी, तो सिंपली अब देखिए, ग्लूटियस मैक्सिमस के अलावा और कोई सी मसल ऐसा नहीं है जो आपके थाई को मूव करे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, थर्ड का सी। अब सी में थर्ड ऑप्शन आपको कई सारे में मिल रहा है, राइट। अभी हम दूसरा देखते हैं, एक्सटेंड द फोर आर्म। अब हमें फोर आर्म को एक्सटेंड करना है। अब देखिए, ये आपकी फोर आर्म है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। ये आपकी फोर आर्म है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट, एक्सटेंड फोर आर्म, तो एक्सटेंड करते टाइम पे हमारी कौन सी होगी, ट्राइसेप मसल यूज होगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको फ्लैक्स करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, फ्लैक्स करते टाइम पे फ्लैक्स और सुपिनेशन में हमारी बाइसेप यूज होती है। एबडक्ट आर्म की बात करी जाए तो ये कौन करता है, ये हमारा डेल्टॉइड जो मसल है वो रिस्पॉन्सिबल है एबडक्शन ऑफ आर्म्स के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस आज का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारा पेपर जो है वो खत्म हो जाएगा, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। Which of the following is not a type of joint? इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो जॉइंट का टाइप नहीं है। बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट होता है, ठीक है, हिंज टाइप का भी जॉइंट होता है, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, रेंज ऑफ जॉइंट कोई भी जॉइंट का टाइप नहीं है। ठीक है, अगर इनके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। आप सारे लोग बाद में अपना स्कोर जो है वो टाइप करके मुझे बता देंगे। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।